Hello students, welcome you all. Today we are going to further discuss the new topics of our chapter number 4, that is structure of atom. Okay students, in the previous session we discussed the structure of atom. We discussed the model of Thomson and Rutherford's model of an atom. Okay, now let us further discuss the Bohr's model of atom. Students, in order to overcome the objections raised against Rutherford's model of the atom, Niels Bohr, scientist Niels Bohr, put forward the following postulates about the model of an atom. Okay, in order to what? In order to overcome the objections raised by against what? Rutherford's model. Rutherford had proposed the atomic model, but there were few drawbacks. Some objections were raised against those model. So, which postulates Rutherford has given? The first postulate is that an atom has a positively charged nucleus at its center. You can see in the figure, students, an atom has what? Positively charged nucleus at its center, and most of the mass of the atom is in the nucleus only. Second point, the electrons revolve around the nucleus in special orbits called discrete orbits. The electrons are revolving around the nucleus, okay, in special orbits, and these orbits are called discrete orbits. While revolving around the discrete orbits, the electrons do not radiate energy. इलेक्ट्रॉन्स जब इन ऑर्बिट्स में रिवॉल्व करते हैं तो इसमें एनर्जी रेडिएट नहीं करते हैं, और जब एनर्जी रेडिएट नहीं करते हैं तो दे डू नॉट फॉल इनसाइड द न्यूक्लियस. सो रुदरफोर्ड का मॉडल का जो लिमिटेशन है यहाँ पे क्या हो गया? निकल गया. ओके, नाउ दीज ऑर्बिट्स आर कॉल्ड शेल्स और एनर्जी लेवल्स. दे आर कॉल्ड एनर्जी लेवल्स और शेल्स एंड आर रिप्रेजेंटेड बाय द लेटर्स, कैपिटल लेटर्स KLMN. जैसे फर्स्ट ऑर्बिट को K शेल बोलते हैं, सेकेंड ऑर्बिट को L, third orbit M, then fourth orbit N, or numbered as what? First, second, third, fourth. Okay students, once again let us discuss Bohr's model of an atom. The first point is that an atom has a positively charged nucleus at its center, and most of the mass of the atom is in the nucleus. Second point, the electrons revolve around the nucleus in special orbits called discrete orbits. While revolving in these discrete orbits, the electrons do not radiate any energy. And these orbits are called what? Energy levels or shells, and they are numbered as 1, 2, 3, 4, etc., or named as what? KLMN. Okay, now let us discuss how electrons are distributed in these different shells, how electrons are distributed in these different orbits. Okay, the distribution of electrons in different orbits was suggested by Bohr and Bury. Bohr and Bury. Bohr का spelling यहाँ पे mistake है, BOHR, it should be there. Bohr and Bury, two scientists, have suggested the distribution of electrons in different orbits. The following are the rules for filling electrons in different orbits. Okay, what are the rules? Let us see how electrons are distributed in these orbits. हमने ये तो देख लिया कि electrons जो है वो revolve होते हैं around the nucleus in various orbits. तो किस orbit में कितने electrons हो सकते हैं उसके लिए भी एक formula है. So let us see the formula. The first point, the maximum number of electrons in a shell is given by the formula 2n square. The maximum number of electrons in any shell, in any orbit, is how much? 2n square, where n is the number of shell, that is 1, 2, 3, 4, etc. तो जैसे अगर आपको फर्स्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स अगर आपको जानना हो तो फर्स्ट शेल इज ऑल्सो नोन एज K शेल, जिसमें n कितना है? 1 है. तो n की वैल्यू 1 लगा दो फॉर्मूला में 2n स्क्वायर में. 2n स्क्वायर दैट इज 2 इंटू 1 स्क्वायर, एंड 1 स्क्वायर कितना होता है? 1 इंटू 1 दैट इज 1, और इंटू 2 कर दो तो कितने आ गए? 2 इलेक्ट्रॉन्स. आर यू गेटिंग स्टूडेंट्स? इन फर्स्ट शेल हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स कैन बी एकोमोडेटेड? इट्स अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला 2n स्क्वायर, उसमें n की जगह 1 लगा दिया, सो इट इज 2 इंटू 1 स्क्वायर, दैट इज हाउ मच? 2 इलेक्ट्रॉन्स. So in the first shell maximum 2 electrons can be accommodated. एक बार 2 इलेक्ट्रॉन्स भर गए फर्स्ट ऑर्बिट में, आपको फिर सेकेंड ऑर्बिट में जाना पड़ेगा. ओके स्टूडेंट्स, नाउ इन द सेकेंड शेल विच इज ऑल्सो नोन एज L शेल, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स कैन बी अकोमोडेटेड अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला 2n स्क्वायर, उसमें n की जगह 2 लगा दो क्योंकि सेकेंड शेल है. तो 2 इंटू 2 स्क्वायर, 2 स्क्वायर होता है 4, और आगे वाले 2 से इंटू किया तो 4 2 8 इलेक्ट्रॉन्स.
So in the second shell, maximum 8 electrons can be accommodated. Similarly, in the third shell, that is M shell, 2n square, that is 2 into 3 square, that is 18 electrons. And in the fourth shell, that is N shell, it is 2 into 4 square, that is 32 electrons, and so on. ये तो shells बढ़ते ही जाते हैं. Okay. So you have seen that in the first shell maximum 2 electrons, in the second shell maximum 8 electrons, in the third shell maximum 18 electrons, and in the fourth shell maximum 32 electrons can be accommodated. Okay, now these are the number of electrons which can be accommodated in the various shells. But if any shell is the outermost shell, okay, if any shell for an atom, any shell is the outermost shell, then maximum 8 electrons can be filled in it. So see the third point, maximum number of electrons that can be filled in the outermost shell is 8. अगर वो outermost shell है किसी भी ऑर्बिट का, तो उसमें मैक्सिमम कितने हो सकते हैं? 8 इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं. ओके, देन इलेक्ट्रॉन्स कैनॉट बी फिल्ड इन अ शेल अनलेस द इनर शेल्स आर फिल्ड. जब तक अंदर का शेल भरेगा नहीं, अंदर का ऑर्बिट भरेगा नहीं, तब तक इलेक्ट्रॉन नेक्स्ट ऑर्बिट में नहीं जा सकता. फर्स्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन्स भर गए, सेकेंड में अगर 8 भर गए, उसके बाद ही वो थर्ड ऑर्बिट में जा सकता है. ओके, तो until and unless the inner shells are filled, electrons cannot be filled in the outer shells. Okay students, so these are the rules how electrons are to be distributed in different shells. Students, here you can see the atomic structure of the first 18 elements. These diagrams, these figures are on page number 50 of your NCERT textbook. आपको NCERT textbook रेफर कर सकते हैं, उसमें पेज नंबर 50 में ये सारे 18 एलिमेंट्स के इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन, इट इज़ कॉल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, यू कैन सी. ओके, जैसे सबसे पहला क्या है? हाइड्रोजन एटम. जो बीच का डॉट होता है वो क्या होता है? न्यूक्लियस होता है. ओके, एंड हाइड्रोजन पोसेस ओनली 1 इलेक्ट्रॉन. इट्स एटॉमिक नंबर इज 1. एटॉमिक नंबर मीन्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन. किसी भी एटम में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन इक्वली होते हैं. सो इट पोसेस ओनली 1 इलेक्ट्रॉन. ओके, सो इसके फर्स्ट ऑर्बिट में एक ही इलेक्ट्रॉन है. ओके स्टूडेंट्स, हाइड्रोजन के बाद आता है हीलियम जिसका एटॉमिक नंबर 2 है. सो इट पोसेस 2 इलेक्ट्रॉन्स. सो बीच में न्यूक्लियस और उसके पास 2 इलेक्ट्रॉन्स. कैन यू सी, हीलियम के पास 2 ही इलेक्ट्रॉन्स है इन द फर्स्ट ऑर्बिट. एंड वी ऑल नो दैट कि फर्स्ट ऑर्बिट में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं? 2. तो हीलियम के बाद जो भी एलिमेंट आएगा जिसके पास 3 इलेक्ट्रॉन है, उसके अंदर क्या नहीं हो सकता? फर्स्ट ऑर्बिट में और इलेक्ट्रॉन नहीं भर सकते, तो आपको सेकंड ऑर्बिट शुरू करना पड़ेगा. सो द थर्ड एलिमेंट इज लिथियम हुज एटॉमिक नंबर इज 3. यू कैन सी लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 है, तो बीच में न्यूक्लियस. इन द फर्स्ट ऑर्बिट 2 इलेक्ट्रॉन्स आर देयर एंड इन द सेकंड ऑर्बिट 1 इलेक्ट्रॉन. 2, 1, दैट इज अवर टोटली 3 इलेक्ट्रॉन्स. ओके, देन कम्स बेरिलियम. तो बेरिलियम का एटॉमिक नंबर 4 है, दैट इज 4 इलेक्ट्रॉन्स. तो फर्स्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड ऑर्बिट में और 2 इलेक्ट्रॉन्स. Okay, then boron, B for boron, 5 electrons are there. Its atomic number is 5. तो फर्स्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन एंड देन सेकंड ऑर्बिट में 3 इलेक्ट्रॉन. ओके, देन कार्बन 6, एटॉमिक नंबर इज 6. तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? 2,4. 2,4 बताता हूँ इसका मतलब क्या, कि इन द फर्स्ट ऑर्बिट 2 इलेक्ट्रॉन्स आर देयर एंड इन द सेकंड ऑर्बिट 4 इलेक्ट्रॉन्स आर देयर. देन कम्स नाइट्रोजन. इट्स एटॉमिक नंबर इज 7. So its electronic configuration is 2,5. In the first orbit 2 electrons and in second orbit 5 electrons. Then oxygen, its atomic number is 8, that is 2,6. Then fluorine 9, its electronic configuration is 2,7. And then comes neon. Neon means what? Its atomic number is 10. So its electronic configuration is 2,8. First orbit में 2 and second orbit में 8 electrons are there. So second orbit में भर गया ना. हमने देखा था इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन में that in the first orbit maximum 2 electrons can be accommodated and in the second orbit 8 electrons can be accommodated. तो इसका 8 भी भर गया. अब आता है 11वां नंबर पे सोडियम. इसका सिंबल Na है, सोडियम, नाइट्रियम इसका लैटिन नेम. तो इट्स एटॉमिक नंबर इज 11. इट मीन्स इट पोसेस 11 electrons. तो इन द फर्स्ट ऑर्बिट 2 इलेक्ट्रॉन्स, इन द सेकेंड ऑर्बिट 8 इलेक्ट्रॉन्स. तो 2,8 कितना हो गया? 10. एक इलेक्ट्रॉन और बाकी है, वो कहाँ जाएगा? थर्ड ऑर्बिट में. सो फ्रॉम सोडियम थर्ड ऑर्बिट स्टार्ट्स. आई होप यू आर गेटिंग. सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है, सो इट्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज 2,8,1. Then comes magnesium. Its atomic number is 12. So 2,8,2. थर्ड ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे.
Then aluminium, its atomic number is 13, that is 2,8,3, its electronic configuration. Then comes silicon, its atomic number is 14, so its electronic configuration will be 2,8,4. Then phosphorus, its atomic number is 15, so electronic configuration will be 2 in the first orbit, 8 in the second orbit, and 5 electrons in the third orbit. Similarly, sulfur atomic number 16 is the 2,8,6. Then comes chlorine, its atomic number is 17. So electronic configuration will be 2 in the first orbit, 8 in the second orbit, and 7 electrons in the third orbit. Okay, and finally comes argon. Argon is the 18th element whose atomic number is 18, so it possesses 18 electrons. And how are the electrons distributed? 2 in the first orbit, then 8 in the second orbit, and then again 8 in the third orbit. And इसका outermost orbit है तो 8 इलेक्ट्रॉन से भर गया है, so its outermost orbit is filled with 8 electrons, so it is called inert. Can you see helium, neon and argon? ये जो लास्ट के जो ऊपर से 3 दिख रहे हैं आपको, हीलियम जिसका फर्स्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन पूरा भर गया है, देन कम्स नियॉन जिसका सेकेंड ऑर्बिट 8 इलेक्ट्रॉन से भर गया है, और जिस आर्गॉन इसका भी आउटर मोस्ट ऑर्बिट जो थर्ड ऑर्बिट है 8 इलेक्ट्रॉन से भर गया है. तो जिनका आउटर मोस्ट ऑर्बिट भर जाता है ना, दोज आर कॉल्ड इनर्ट एलिमेंट्स या इनर्ट गैसेस. ये गैसेस होते हैं, ये इनर्ट एलिमेंट्स से, एंड देयर वैलेंसी इज जीरो. व्हाट इज वैलेंसी आई विल एक्सप्लेन यू, बट यहाँ पे आप देख सकते हो कि इनके आउटर मोस्ट ऑर्बिट जो है इलेक्ट्रॉन से भर गए. जैसे हीलियम का आउटर मोस्ट ऑर्बिट फर्स्ट ऑर्बिट ही है, वो 2 इलेक्ट्रॉन से भर गया, उसमें और भर नहीं सकते कुछ भी. देन कम्स नियॉन. नियॉन का आउटर मोस्ट ऑर्बिट सेकेंड ऑर्बिट है और वो 8 इलेक्ट्रॉन से टोटली भर गया है. सिमिलरली आर्गॉन का थर्ड ऑर्बिट आउटर मोस्ट ऑर्बिट है और वो 8 इलेक्ट्रॉन से क्या हो गया, भर गया है. सो आउटर मोस्ट ऑर्बिट इज फिल्ड विद द इलेक्ट्रॉन्स, सो दे आर कॉल्ड इनर्ट एलिमेंट्स एंड देयर वैलेंसी इज जीरो. ओके स्टूडेंट्स, अभी हम इसको हम टेबुलर फॉर्म में देखते हैं ये पूरे चीज़ को. Look at this table. It is the composition of atoms of the first 18 elements. Okay, हम इसमें क्या क्या देखने वाले, एलिमेंट का नाम, उसका सिंबल, उसका एटॉमिक नंबर, और जितना उसका एटॉमिक नंबर होगा उतना ही उसके प्रोटॉन्स होंगे और उतने ही इलेक्ट्रॉन्स होंगे. न्यूट्रॉन का नंबर अलग अलग होता है. ओके, देन उसके डिस्ट्रीब्यूशन कि कौन कौन से शेल में कितने कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. ओके, और उसकी वैलेंसी लास्ट में. ओके स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस डिस्कस व्हाट डू यू मीन बाय वैलेंसी. वैलेंसी का मतलब क्या होता है? एक्चुअली वैलेंसी का मतलब द इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द आउटरमोस्ट शेल ऑफ एन एटम आर नोन एज द वैलेंस इलेक्ट्रॉन. आउटरमोस्ट शेल में जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कहलाते हैं. नाउ वी नो दैट द आउटरमोस्ट शेल ऑफ एन एटम कैन अकोमोडेट मैक्सिमम हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स, 8 इलेक्ट्रॉन्स. It was observed that the atoms of elements completely filled with 8 electrons in the outermost orbit show the little chemical activity. ओके, जिनका आउटरमोस्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन भर गया है उसमें एकदम इनर्ट हो जाते हैं, वो कोई और केमिकल रिएक्शन नहीं करते हैं. ओके, सो देयर कंबाइनिंग कैपेसिटी दैट इज वैलेंसी इज जीरो. इनकी वैलेंसी क्या होती है, जीरो. ओके, अभी बाकी सबकी वैलेंसी की बात करते हैं. वैलेंसी मतलब कितने इलेक्ट्रॉन्स ये डोनेट या कितने गेन कर सकते हैं, दैट इज कॉल्ड इट्स वैलेंसी. देयर कंबाइनिंग कैपेसिटी इज कॉल्ड वैलेंसी. द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एनी एटम इज कॉल्ड वैलेंसी. जैसे हम हाइड्रोजन की बात करते हैं तो लेट अस गो फॉर द फर्स्ट रो. नेम ऑफ द एलिमेंट इज हाइड्रोजन, इट्स सिंबल इज H एंड इट्स एटॉमिक नंबर इज 1. तो सिंस इट्स एटॉमिक नंबर इज 1, सो द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर 1 1. प्रोटॉन भी 1 होगा, इलेक्ट्रॉन भी 1 होगा, बट इसमें न्यूट्रॉन्स नहीं है. ओके, तो हाउ आर द इलेक्ट्रॉन्स डिस्ट्रीब्यूटेड? फर्स्ट ऑर्बिट में 1 इलेक्ट्रॉन है ना, के शेल में. फर्स्ट ऑर्बिट को हम क्या बोलते हैं, के शेल, उसमें 1 ही इलेक्ट्रॉन. अभी अभी हमने देखा ना, यू कैन सी हाइड्रोजन है ना, हाइड्रोजन के फर्स्ट ऑर्बिट में 1 ही इलेक्ट्रॉन है, वो के शेल कहलाता है. ओके स्टूडेंट्स, अब वो 1 ही इलेक्ट्रॉन है तो वो 1 इलेक्ट्रॉन ईजिली क्या कर सकता है, डोनेट कर सकता है. सो इट्स वैलेंसी इज 1. ओके, देन कम्स हीलियम. हीलियम सिंबल इज He and its atomic number is 2. So it possesses 2 protons and 2 electrons, और बीच में न्यूट्रॉन्स भी इसमें कितने, 2 है. It possesses neutrons also in the nucleus, है ना. We all know that neutrons are the chargeless particles present in the nucleus. Okay, वो भी कितने, 2 है. तो इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा,
के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, फर्स्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन, एंड वी ऑल नो दैट कि फर्स्ट ऑर्बिट में मैक्सिमम 2 ही इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। सो इसकी वैलेंसी अभी कितनी, 0। एक बार इसके 2 इलेक्ट्रॉन्स भर गए तो अब ये कुछ डोनेट भी नहीं कर सकता, गेन भी नहीं कर सकता इलेक्ट्रॉन्स, सो इट्स वैलेंसी इज 0। ओके, इट्स कंबाइनिंग कैपेसिटी इज 0। देन कम्स लिथियम. Lithium's atomic symbol is Li and its atomic number is 3. So the number of protons is 3 and electrons is 3, but it possesses 4 neutrons. तो न्यूट्रॉन का नंबर चेंज हो सकता है. ओके, इसके न्यूट्रॉन्स कितने, 4 है. तो हाउ आर द इलेक्ट्रॉन्स डिस्ट्रीब्यूटेड, फर्स्ट ऑर्बिट में 2 ही हो सकते हैं मैक्सिमम, और सेकंड ऑर्बिट में 1 इलेक्ट्रॉन. ये तो हमने देखा ना फिगर में. आप देख सकते हैं लिथियम के फर्स्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन है और सेकंड ऑर्बिट में 1 इलेक्ट्रॉन है. तो के में 2 है और एल में 1 है. ओके, सो आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने, 1 इलेक्ट्रॉन है और वो 1 इलेक्ट्रॉन इजीली डोनेट कर सकता है. सो इट्स वैलेंसी इज 1. देन कम्स बेरिलियम Be, its atomic number is 4. So number of protons and electrons are 4 each, but number of neutrons is 5. and इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा, 4 इलेक्ट्रॉन है तो फर्स्ट ऑर्बिट में 2 और सेकंड में 2. ओके, एंड व्हाट इज द वैलेंसी, आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन है तो 2 इजीली डोनेट कर सकते हैं. सो इट्स वैलेंसी इज 2. देन बोरॉन का एटॉमिक नंबर 5 है. सो प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन्स आर 5 ईच एंड न्यूट्रॉन इज 6. नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इज 6 इनसाइड द न्यूक्लियस. एंड क्योंकि 5 इलेक्ट्रॉन है तो फर्स्ट ऑर्बिट में 2 और सेकंड ऑर्बिट में 3 इलेक्ट्रॉन्स. सो इट्स वैलेंसी इज 3, आउटर मोस्ट ऑर्बिट के नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जितना वो डोनेट कर पा रहे हैं. देन कम्स कार्बन, 6 है. इसके अंदर प्रोटॉन भी 6, इलेक्ट्रॉन भी 6 और इसके न्यूट्रॉन्स भी 6 ही है. ओके, सो इसका इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा, 2,4. ओके, एंड इट कैन डोनेट 4 इलेक्ट्रॉन्स, या फिर 4 इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट ऑर्बिट में है. सो इट्स वैलेंसी इज 4. बट अभी से नाइट्रोजन से लेके ध्यान देना, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना है, 7. सो इसके पास 7 प्रोटॉन है, 7 इलेक्ट्रॉन है और इसके न्यूट्रॉन का नंबर भी कितना है, 7 है. ओके, अभी इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, सिंस इट पोसेस 7 इलेक्ट्रॉन्स, सो इट्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन विल बी 2,5. तो इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 5 इलेक्ट्रॉन है, तो ये 5 के 5 इलेक्ट्रॉन डोनेट नहीं कर सकता कंबाइनिंग कैपेसिटी के लिए, किसी और से कंबाइन होने के लिए 5 के 5 इलेक्ट्रॉन डोनेट नहीं कर सकता. तो अभी हम क्या करेंगे कि क्योंकि पहले 1 इलेक्ट्रॉन था आउटर मोस्ट ऑर्बिट में तो वो डोनेट कर सकता था, जैसे लिथियम. 2 इलेक्ट्रॉन है तो डोनेट कर सकते हैं, तो बेरिलियम. देन 3 इलेक्ट्रॉन था बोरॉन के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में तो वो डोनेट कर सकता था. कार्बन के पास भी 4 इलेक्ट्रॉन था तो उसकी वैलेंसी 4. बट जब नाइट्रोजन में आ गया तो उसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 5 इलेक्ट्रॉन है एंड डोनेटिंग 5 इलेक्ट्रॉन्स बाई एनी एटम इज नॉट पॉसिबल. ओके, तो वो क्या करता है, 5 इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की जगह पे अपना ऑक्टेट फिल करने के लिए, आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन्स चाहिए फिल करने के लिए, 8 इलेक्ट्रॉन्स. सेकंड ऑर्बिट अगर आउटर मोस्ट ऑर्बिट होगा तो कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 8 इलेक्ट्रॉन्स. तो अपने 8 इलेक्ट्रॉन्स का कोटा पूरा करने के लिए उसके पास ऑलरेडी सेकंड ऑर्बिट में कितने, 5 इलेक्ट्रॉन्स है नाइट्रोजन के पास. ओके, तो अपना आउटर मोस्ट ऑर्बिट का कोटा पूरा करने के लिए वो कितने इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता है, 3 इलेक्ट्रॉन्स. सो इट्स वैलेंसी विल बी 3. सो वैलेंसी का मतलब इतना ही नहीं कि कितने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकते हैं, आइदर कितने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकते हैं या फिर कितने इलेक्ट्रॉन्स गेन कर सकते हैं. द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डोनेटेड और द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गेन्ड बाय एनी एटम इज कॉल्ड इट्स वैलेंसी. सो नाइट्रोजन गेन्स 3 इलेक्ट्रॉन्स, तो 5 और 3 कितने, 8 हो जाएंगे आउटर मोस्ट ऑर्बिट में, और वो क्या कर सकता है, अपना इनर्ट गैस का वो कॉन्फ़िगरेशन बना सकता है. सो इट्स वैलेंसी इज 3. देन कम्स ऑक्सीजन. Oxygen's atomic number is 8. Okay, so its number of protons, number of electrons are also 8 and even neutrons are also 8. तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, 2,6. तो इसके सेकेंड ऑर्बिट में 6 इलेक्ट्रॉन्स है. सो इट कैनॉट डोनेट 6 इलेक्ट्रॉन्स. तो व्हाट इट विल डू, इट विल गेन 2 इलेक्ट्रॉन्स इन द, है ना. तो उसका आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने, 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, तो वो 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता है. सो इट्स वैलेंसी इज 2. देन फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर 9 है, तो 2,7, तो वो 1 इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता है अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए. सो इट्स वैलेंसी इज 1. देन कम्स नियॉन पे इंपॉर्टेंट है. नियॉन का एटॉमिक नंबर 10 है. सो इट्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज 2,8. सो इट्स आउटर मोस्ट ऑर्बिट इज फिल्ड विथ 8 इलेक्ट्रॉन्स. और हम जानते हैं कि आउटर मोस्ट सेकेंड ऑर्बिट में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन. तो सिंस इट्स आउटर मोस्ट ऑर्बिट इज फिल्ड, तो it can neither gain electron nor it can donate electron. So its valency will be 0. ओके स्टूडेंट्स, उसके बाद आता है सोडियम, एटॉमिक नंबर 11 है.
ओके, तो 2,8,1 तो आउटर मोस्ट ऑर्बिट में एक इलेक्ट्रॉन है, सो इट्स वैलेंसी इज 1. मैग्नीशियम में 2 इलेक्ट्रॉन है, वैलेंसी इज 2. देन एल्यूमिनियम में 3 इलेक्ट्रॉन है, सो इट्स आउटर मोस्ट वैलेंसी ऑर्बिट में 3 इलेक्ट्रॉन है, तो इट्स वैलेंसी इज 3. देन सिलिकॉन 14 है इसका एटॉमिक नंबर, 2,8,4 तो इट्स वैलेंसी इज 4. देन फॉस्फोरस इज अ स्पेशल एलिमेंट, इसका एटॉमिक नंबर 15 है, 2,8,5 तो 5 है, तो हम जानते हैं कि भाई 5 इलेक्ट्रॉन डोनेट करना मुश्किल होता है, तो वो 3 इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए, अपना ऑर्बिट पूरा करने के लिए. ओके, तो उसकी वैलेंसी वैसे 3 होनी चाहिए. ओके, लेकिन कभी कभी ये क्या करता है, 5 इलेक्ट्रॉन्स भी डोनेट कर लेता है, सो इसकी वैलेंसी 5 भी हो सकती है कभी कभी. तो 3,5 इट हैज़ बोथ वैलेंसीज. देन सल्फर 16th element 2,8,6 so it has 6 electrons in its outermost orbit. It cannot donate all 6 electrons, so it will gain 2 electrons and it will complete its orbit, so its valence is 2. then chlorine 2,8,7 तो ये एक इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता है अपना ऑर्बिट पूरा करने के लिए, सो इट्स वैलेंसी इज 1. नाउ स्टूडेंट्स, इसमें एक रह गया है आर्गॉन. आर्गॉन AR, इट्स एटॉमिक नंबर इज 18 है ना, उसके पास 18 इलेक्ट्रॉन्स है, 18 प्रोटॉन्स है, बट न्यूट्रॉन नंबर इज 22. आर्गॉन का न्यूट्रॉन का नंबर 22. यू कैन सी ऑन पेज नंबर 51 टेबल 4.1 इन योर NCERT टेक्स्ट बुक, उसमें आर्गॉन भी दिया हुआ है लास्ट में. ओके, तो क्योंकि 17 इलेक्ट्रॉन्स है, तो इट्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन विल बी 2,8,7. ओके, आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 7 इलेक्ट्रॉन है. ओके, और अभी इसके बाद सॉरी क्लोरीन का 17 था, आर्गॉन की बात कर रहे हैं, सॉरी स्टूडेंट्स, आर्गॉन्स एटॉमिक नंबर इज 18. ओके, तो 18 इलेक्ट्रॉन्स है, तो कैसे ऑर्बिट में बढ़ेंगे उसके, फर्स्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड ऑर्बिट 8 इलेक्ट्रॉन एंड थर्ड ऑर्बिट 8 इलेक्ट्रॉन्स. सो इट्स outermost orbit is filled with 8 electrons, so its valency will be 0. It can neither gain electrons nor it can donate electrons. Okay students, so students, by this we end our today's session. You have to draw all the diagrams of first 18 elements. जैसे इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन है वो आपको ड्रॉ करने होंगे आपके नोटबुक में, दैट आई विल गिव यू इन द असाइनमेंट ऑल्सो, वर्कशीट में दूंगा मैं आपको मैं. ओके स्टूडेंट्स, गो थ्रू दिस वीडियो प्रॉपरली सो दैट यू गेट द क्लियर आइडिया ऑफ इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन. ओके, इसको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी बोलते हैं. ओके, एंड इट विल बी वेरी यूजफुल फॉर यू इन योर नेक्स्ट क्लासेस, सो प्लीज़ प्रिपेयर दिस electronic configurations. Okay students, till then thank you.